DPSP's directive principle of state policy. So directive principle of state policy are enumerated in part 4th. In part 3rd there are fundamental rights of constitution from article 36 to 51. ठीक है, तो ये हमने लिया गया है 36 से 51 तक, लेकिन 38 से 51 तक ही वैलिड है क्योंकि 36 और 37 में इंट्रो है DPSP का. ओके, सो द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन borrowed this idea from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from Spanish Constitution. Okay, so B.R. Ambedkar described these principles as novel features of Indian Constitution. Novel features. Why novel features? We see this: the directive principle along with fundamental right contain the philosophy of Constitution and is the soul of Constitution. Okay, so features of directive principle. What are the features? So basically, the phrase directive principle of state policy denotes the ideal that states should keep in mind while formulating policies and enacting laws. These are constitutional instruction or recommendation to the state in legislative, executive and administrative matter. According to Article 36, the term state in Part 4 has the same meaning in Part 3 dealing with the fundamental right. So in third, state are being described as the entity or basically government organization. These all are under the state. So same with DPSP also. Therefore, it includes the legislative and executive organ of central and state government, all local authority and all public authority in countries. So state cover all these things: legislative, executive organ of central and state government, all local authority and all other public authority in the country. Now second point, DPSP resemble the instruments of instruction. So basically what it is, a Government of India Act of 1935. So basically DPSP is all we take from the 1935 constitution, which is instrument of instruction. Okay, unlike the instrument of instruction which were issued to the Governor General and to the Governor of the colonies of India by British government. Okay, so at that time it is being given by British government under the Government of India Act of 1935, which is called the directive principle, in merely another name of instrument of instruction. Okay, it is the other name. So basically it is derived from the 1935 Governor General Act. Okay, the only difference is that they are instruction to the legislative and executive. Okay, the difference is that now in this point these are the instruction to the legislative organs and executive one. Okay, now third point, the directive principle constitute a very comprehensive economic, social and political programme for a modern democratic state. So it constitute a very comprehensive economic. Comprehensive means a wide range of economic, social and political programming for a modern democratic state. Okay, they aim at realizing the high ideal of justice, liberty, equality and fraternity as outlined in the preamble of Constitution. Okay, they embody the concept of a welfare state and not that of a police state. Okay, but they imbibe okay, the welfare of state होना चाहिए, police state नहीं होना चाहिए. It is not like rule by police and all authority like that. It is welfare of state. Okay, which exists during the colonial era. In brief, they seek to establish economic and social democracy in the country. So they want that economic and social democracy are very essential of the things. Okay, so fourth one, the DPSP are non-justiciable in nature. Non-justiciable means that you cannot go in court, that these are not implemented by the government, so we would go to the court. No, you can't. That is, they are not legally enforceable by court by the evolution. Okay, therefore the government, central, state and local cannot be compiled to implement them. They cannot comply that okay, we have to implement. It is not possible. Neverthelessly, the Constitution Article 37 itself say that these principles are fundamental in the governance of the country. These are fundamental. If a party wants, if the government wants, so they enact DPSP.
to the state, to the country. If they don't want, so it is just a DPSP. Okay, the content shall be duty of state to apply these principles in making law. So Article 37 itself say that okay, so it is duty of government, but it is not enforceable on them. It is duty. It's they say that it is duty, they have to apply this, but it is not enforceable in any court. That's it. Fifth point, DPSP through non-justiciable in nature help the court in examining and determining the constitutional validity of a law. So basically, if a law is being made, if a fundamental rule is being made, so they can recheck or cross check that it is being valid. Is just not removing the DPSP means if they do anything in in DPSP or in fundamental right, so they can merge or see the things in wide manner. Okay, the Supreme Court has ruled many a times that in determining the constitutionality of a law, if court find that law is questioned, seek to give effect to directive principle, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14 equality before law. So basically, if even they make DPSP applicable, so they have to recheck or cross check that it is being legit on the basis of Article 14 equality before law and or Article 19 six fundamental six freedom, and thus save such law from unconstitutionality. Okay, so that not mean they always say that DPSP is basically providing people, giving them. Okay, so interference with people, but fundamental right, conserving their rights, government separating them from government. Okay, so basically if they apply DPSP, so they have to communicate with government, so they want that Article 14, which is equality before law, is not being abbreviated, or Article 19 six freedoms are not being misused in that manner. Now it's time for classification of directive principle. So there are three classification. First one is socialist principle, second one is Guardian principle, and third one is liberal intellectual principle. Okay, so these are very important in term of uh, knowing things, okay, which are applicable. So most important are Article 40, Article 45, Article 51, Article 49, Article 48, or Article 44. So basically these mostly cover in Guardian principle and liberal intellectual principle. So we cover Guardian principle and liberal intellectual principle first, then we go for socialist principle. So what is Guardian principle? Based on Guardian ideology. It's based on totally on Guardian ideology. They represent the programme of reconstruction enumerated by Gandhi during the national movement. In order to fulfill the dream of Gandhi, some of his ideas were included as directive principle. So basically they want to fulfill the dream of Gandhi, so they included the DPSP. They required the state. Okay, so first Article 40, to organize village panchayat and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as unit of self government. So to organize village panchayat, ऑर्गेनाइज करना एंड इंडो देम विद नेसेसरी पावर देना एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज सेल्फ गवर्नमेंट, ताकि सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ काम कर सकें, वो आर्टिकल 40 के अंदर कवर होता है. नाउ इस टाइम फॉर आर्टिकल 43 भी आर्टिकल 43, सो उसमें होता है कि प्रमोट करना कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को और इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट आर्टिकल 43B, प्रमोट करना वॉलंटियर फॉर्मेशन और ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, इन सबको प्रमोट करना यह आता है 43B के अंदर, ताकि वॉलंटियर फॉर्मेशन, जो वॉलंटियर लोगों का फॉर्मेशन होता है, ऑटोनोमस फंक्शनिंग होता है कि जो कोई जान नहीं रहा है फंक्शन कौन कर रहा है, और डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ये आर्टिकल 43B के अंदर आता है. देन आर्टिकल 46, टू प्रमोट करना एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल एंड इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन. सो ये आता है आर्टिकल 46 के अंदर. ठीक है. नाउ आर्टिकल 47, टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ. दिस कवर इन आर्टिकल 47. Now Article 48, prohibit करना slaughter of calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds. This cover in Article 48.
So these are guardian principle. Okay, so mostly are them being implied also. We see that slaughter has been article 48 is being copied, and article 47 is also copied, article 46. So mostly all of them are being worked on. Okay, so these are guardian principle, and mostly we see that things are being working on it. Now at second point, liberal intellectual principle. So liberal include the categories present the ideology of liberalism. First, to secure for all citizens a uniform civil code throughout the country. Article 44. Article 44 what? To secure करना all citizen के लिए uniform civil code and throughout the country. Now article 45, provide करना early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. Again, Article 45, to provide earlier childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. Now, Article 48, to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. This covered in Article 48. Organize करना agriculture or animal husbandry on modern and scientific lines. Now Article 48A, protect करना और improve करना environment and to safeguard forest and wildlife. This covered in Article 48A. Now Article 49, to protect monuments, places and objects of artistic and heroistic interest which are declared to be a national importance. Article 49. So it is been important. Again, Article 49 में क्या है? Article 49 is being to protect monuments, places and object of artistic or historic interest which are declared to be a national importance. Now Article 50, to separate the judiciary from executive in the public service of state. It has been Article 50. Now Article 51, to promote international peace and security and maintain just and honorable relation between nations to foster respect for international law and treaty obligation and to encourage settlement of international disputes by arbitration. Okay, so promote करना इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटीज को और मेंटेन करना जस्ट एंड honorable relations with nations to foster respect for international laws and treaty obligation and to encourage settlement of international dispute by arbitration. ठीक है, ये आता है आर्टिकल 51 के अंदर. सो ये कवर हो गए हमारे गार्डियन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. नाउ अब आता है थर्ड हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट तभी हम उसको कवर करेंगे. ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा, ये रिफ्लेक्ट करता है आइडियोलॉजी सोशलिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं, लिए लेट डाउन करते हैं जो फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट को एम टू प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड टू सेट द पाथ टूवर्ड्स वेलफेयर स्टेट. सो बेसिकली देयर पाथ इज टूवर्ड द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. ठीक है, फर्स्ट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय securing a social order permitted by justice, social, economic and political, and to minimize inequality in income status, facilities and opportunities. Article 38. So Article 38 क्या बोलता है? प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, तो सबके बराबर इनकम हो, ऐसा इसमें कुछ काम को भी होता नहीं है. ठीक है, कोई नहीं चाहता इसमें काम हो. नाउ आर्टिकल 39, सिक्योर करना राइट्स टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन. बी द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल सोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड्स. सी प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. डी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, समान पैसा. ठीक है. ई प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज़. उनकी हेल्थ में और जो स्ट्रेंथ में जो वर्कर्स और चिल्ड्रंस हैं ताकि वो अब्यूज़ ना हो. एफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटीज़ होना उनकी ताकि हेल्थी डेवलपमेंट हो चिल्ड्रन का. आर्टिकल 39 के अंदर आता है. नाउ आर्टिकल 38 ए के अंदर प्रमोट करना इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर. ठीक है, प्रमोट करना इक्वल जस्टिस और प्रोवाइड करना फ्री लीगल एड टू पुअर, गरीब लोगों को. ठीक है. नाउ आता है आर्टिकल 41, उसके अंदर आता है सिक्योर करना द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलिमेंट. ठीक है,
तो बेसिकली आर्टिकल 14 के अंदर आता है सिक्योर करना राइट टू वर्क, काम करना, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट केस में, ओल्ड एज के उसमें, और सिकनेस और डिसेबलिमेंट के उसमें, ठीक है। नाउ आता है आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मटर्निटी रिलीफ, ठीक है, ताकि जस्ट ह्यूमन कंडीशन सिक्योर करना और मटर्निटी लीव प्रोवाइड करना वो आर्टिकल 42 के अंदर कवर होता है। नाउ इस टर्म फॉर 43, सो टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर। 43 क्या बोलता है, वो कहता है कि एक सिक्योर लिविंग वेज हो, ताकि उतना तो हो उसके पास, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो, एक सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो फॉर ऑल वर्कर्स, सारे वर्कर्स के लिए, ठीक है। नाउ इस टर्म फॉर आर्टिकल 43A वो बोलता है कि स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, सिक्योर करो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, जो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उसमें उसको सिक्योरमेंट मिलनी चाहिए। अब आता है आर्टिकल 47, वो बोलता है रेज करो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ पे काम करो और इन न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाया जाए। सो ये हमारे कवर हो गए क्लासिफिकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आता है हमारा न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या थे, ठीक है। सो द 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द ओरिजिनल लिस्ट। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसने 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए ओरिजिनल लिस्ट में, ठीक है, जो रिक्वायर थे स्टेट को। जैसे कि पहला जो आर्टिकल 39 इटसेल्फ है वो क्या बोलता है, सिक्योर करो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 के अंदर हमने पढ़ा था भी, ठीक है। तो वो ऐड किया गया 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर। दैन उसके आर्टिकल 39A वो प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, ठीक है, वो भी आर्टिकल 39A के अंदर कवर होता है। देन थर्ड वाला 43A वो क्या बोलता है, टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये भी ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर। देन आर्टिकल 48A प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो द 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 एडेड वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जो 1978 था उसने एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया था, वो क्या था। सो जो 44 अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, उसने ऐड किया वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो वो बोलता है कि सबको इनकम के उसमें, स्टेटस के उसमें, फैसिलिटीज़ के उसमें और अपॉर्चुनिटीज़ के उसमें बराबर तक हक मिले, वो आर्टिकल 38 के अंदर कवर किया गया है। सो एक और आर्टिकल ऐड हुआ 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A। सो 86 जो अमेंडमेंट एक्ट था 2002 के अंदर, उसने क्या किया, आर्टिकल जो 45 था उसको ले लिया और उसको एक फंडामेंटल राइट के अंदर बना दिया 21A के अंदर, ठीक है। The amendment directive and required the state to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 year। So उसके बदले एक नया एक्ट आ गया जो बोलता है कि सबको प्रोवाइड करना अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। वो हमारा आर्टिकल 45 के अंदर आ गया जो कि DPSP के अंदर आ गया, ठीक है। एक और अमेंडमेंट हुआ द 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। उसने DPSP रिलेटेड किया कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में। वो कहता है कि टू रिक्वायर द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटियर फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग और डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43B के अंदर। सो बेसिकली जब जब अमेंडमेंट होते हैं तब तब एक नया पार्ट वैल्यू आता है और कभी कभी DPSP फंडामेंटल राइट भी बन जाता है, ठीक है। तो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2002 उसने 3 चेंजेस किए थे। बेसिकली हमने तो पहला पढ़ा, ठीक है। तो जैसे कि हम बोल ही रहे हैं कि फंडामेंटल राइट में उसने चेंज किया। पहले तो आर्टिकल 21A ले आया उसने 6 से 14 साल के बीच में, ठीक है। तो वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 की वजह से हुआ था फंडामेंटल राइट में चेंज 14 से, मतलब ये की कंपलसरी फूड वाला, ठीक है। जो भी है। और फिर सेकंड आता है DPSP अडॉप्टेड बाय फंडामेंटल राइट्स। तो DPSP अडॉप्टेड कर दिया फंडामेंटल राइट, ठीक है, और उसने नया ऐड कर लिया, DPSP नया वाला ऐड हो गया एक, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 10 थे पहले और एक और ऐड कर दिया गया जो कि था 6 से 14 साल के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बाय पेरेंट्स। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर
आ गया। तो 6 से 14 किस तो उनको कंपलसरी एजुकेशन देना है, ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पेरेंट्स की। तो 11 फंडामेंटल जो राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, वो बन गए 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के अंतर्गत। ठीक है। सो नाउ अब आते हैं सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो सैंक्शंस क्या है, कौन को रेगुलेट करता है, क्या आप कुछ और भी कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो DPSP जैसे हमने कहा कि वो इन्फोर्सेबल नहीं है, सो वी हैव टू मेक रीजनेबल लॉस फॉर देम मेड, मीन्स नो वन कैन गो कोर्ट इफ दे आर नॉट फॉलो, हम ये जानते हैं। बट देन ऑल्सो बी एडवोकेट्स ने कहा कि दे आर बीन इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ टू। तो उनने कहा कि ये तब भी इम्प्लीमेंट होंगे, क्यों होंगे, ऐसा क्यों कहा गया उनके द्वारा, बी एडवोकेट द्वारा। देखते हैं। उनने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट अ गवर्नमेंट विच रेस्ट ऑन पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द DPSP while शेपिंग इट्स पॉलिसीज। ठीक है। इफ एनी गवर्नमेंट इग्नोर देम इट विल सर्टेनली हैव टू आंसर फॉर दैट बिफोर द इलेक्टोरेट at the election time. So basically they said if the government ignored this fact, ignored this point, they have to face the conclusion at electorate at the time of election. ठीक है। तो द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल एंड लीगल नॉन इन्फोर्सेबल बिकॉज उनने ऐसा क्यों किया। पहला रीज़न था द कंट्री डिड नॉट पोजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट दैम, इनफ नॉट हैव इनफ मनी, पैसा नहीं है। सेकेंड द प्रेशर ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकग्राउंड इन कंट्री वुड स्टैंड इन द वे ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि उनको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल था। और तीसरा कि उस समय जो इंडियन स्टेट था वो नया बॉर्न हुआ था और प्रीऑक्यूपाइड था, और अगर इसको अप्लाई किया जाता DPSP को तो वो क्रश कर जाता है बर्डन के उसमें, तो ये नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब भी फ्यूचर में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी लोग बढ़ेंगे, एक समझ बनेगी, एक समझ आएगी, तो लोग अपने आप ही इसको अप्लाई करेंगे। तो उनका ये कहना था। ठीक है। अब आता है हमारा कौन सा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ इनके बीच में। तो पहला जो केस था वो था चंपकरण दोरे राजन केस 1951 का। उसमें क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और DPSP में द फॉर्मर वुड प्रिवील। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स सबसे आगे हैं DPSP के मुकाबले। उसने डिक्लेयर की डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू कन्फॉर्म टू रन एज सब्सिडरी टू फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा कि जो DPSP है वो नीचे आते हैं फंडामेंटल राइट्स से, बट इट ऑल्सो हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट बाय इंटैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बट उसने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट को हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के द्वारा। एज अ रिजल्ट द पार्लियामेंट मेड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। तो उसने पहला अमेंडमेंट एक्ट बनाया 1951 का। द 4 अमेंडमेंट एक्ट और फिर अमेंडमेंट होते गए ऐसे। ठीक है। और फिर हुआ था हमारा एक सेकंड वाला गोलकनाथ केस 1967 में। उनमें केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और ब्रेड इन ए फंडामेंटल राइट विच आर सेक्युरेट इन नेचर। उसने कहा कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स को उसको नहीं ले सकता है। इन अदर वर्ड द कोर्ट हेल्ड द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसने ये कहा कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अमेंड करने के लिए फंडामेंटल राइट को आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते कुछ भी, उसमें कुछ भी गड़बड़। ठीक है। उसका ये कहना था गोलकनाथ केस के अंदर। अब आया हमारा तीसरा वाला केशव भारती केस। ठीक है। उसने कहा कि that declare that above second provision of Article 31 CS and Constitution invalid on ground of justiciability as basic features of Constitution, hence cannot be taken away. However, the above first provision of Article 31C had to be Constitution valid. ठीक है। तो उसने भी यही कहा कि यार आप बेसिक चीज़ इनको नहीं ले सकते हो। यही मतलब पहले केस में 3 केस में यही चला। बट फोर्थ जो आया हमारा वो था मिनर्वा मिल केस, जिसने पूरा इतिहास और DPSP को फंडामेंटल राइट्स जो हम देखते हैं उसको देखने का नज़रिया ही बदल दिया। उसने क्या बोला, उसने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये एक हमारी जो नींव है वो DPSPs और फंडामेंटल राइट्स के बीच में बनी हुई है। दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ कमिटमेंट टू सोशल रेवोल्यूशन। वो एक कोर हैं, ठीक है, सोशल रेवोल्यूशन के। दे आर लाइकली टू व्हील ऑफ अ चोरॉट। एक बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं, नो लेस देन अदर। ऐसा नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स को ऊपर करते हो, DPSP को नीचे करते हो, या DPSP को ऊपर करते हो, फंडामेंटल को नीचे करते हो, ऐसा नहीं चलेगा।
both are equal importance. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the constitution. अगर आप एक को उसके ऊपर रखते हो तो आप हारमोनी बिगाड़ रहे हो. दिस हारमोनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के. द गोल सेट आउट बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू अचीव विदाउट द एब्रोगेशन ऑफ मीन्स प्रोवाइड द फंडामेंटल राइट्स. तो आपको गोल अचीव करना है बिना फंडामेंटल को बिगाड़े, ठीक है. देयरफॉर द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंजॉय द सुप्रीमेसी ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. उनने ये कहा कि हाँ अभी तो फंडामेंटल राइट्स ऊपर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, लेकिन दिस डज नॉट मीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है. उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट कर सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो लॉन्ग एज अमेंडमेंट डज नॉट डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब तक कि बेसिक फीचर्स को आप कुछ भी गड़बड़ नहीं करते हो तब तक सब कुछ चंगा सी, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग, ठीक है. तो ये कुल निकल के आया. Now the difference between fundamental rights and directive principle. First, the fundamental rights, these are negative as they prohibit the state from doing certain things. ये रोकते हैं चीज़ें करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए किसी पब्लिक की लाइफ में के अंदर, लेकिन DPSP बोलते हैं वो पॉजिटिव हैं. फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉजिटिव है, क्योंकि वो बोलते हैं कि स्टेट को डू सर्टेन थिंग्स, लोगों के लिए कुछ करने के लिए बोलते हैं, वो पॉजिटिव है. फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हैं, ठीक है, उस सेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में. सेकंड, फंडामेंटल राइट्स दीज आर जस्टिसेबल, दैट इज़ दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट इन केस ऑफ देयर वॉल्यूशन. वॉल्यूशन केस में उसको आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते हो, कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है. थर्ड वन, फंडामेंटल राइट्स एम करता है स्टेबलिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन कंट्री. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कंट्री में वो एम करता है स्टेबलिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इन कंट्री. तो ये दोनों मिलकर तीनों चीज़ कवर कर लेते हैं, सोशल और इकोनॉमिक. अगर आप डेमोक्रेसी करेंगे कंट्रीज़ में तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चल पाएगी, नहीं तो वो तीन पहिए हैं. जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर कहा गया था, एक के बिना दूसरा कुछ नहीं, दूसरे के बिना तीसरा कुछ नहीं. तो तीनों जब मिलेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है. देन फंडामेंटल राइट्स 4.4 बोलता है दीज आर लीगल सेक्शंस, ठीक है, वो लीगल सेंक्शंस हैं. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलता है वो मॉरल और पॉलिटिकल सेंक्शंस हैं. अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहे, अगर मॉरली चाहे तो वो अप्लाई होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स लीगली सैंक्शन होंगे. पांचवा, वो प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल. वेलफेयर होना इंडिविजुअल का, हैंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है. वो प्रमोट करते हैं वेलफेयर होना इंडिविजुअल का, और हैंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, वो खुद के एक पर्सन के उसमें है. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, हैंस दे आर सोशलिटेरियन एंड सोशलिस्ट. वो कम्युनिटी के वेलफेयर का काम करते हैं तो वो उसको सोशलिटेरियन कहते हैं और सोशलिस्ट कहा जाता है, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन और फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन. उसके लिए कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए. दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, वो खुद ही खुद इन्फोर्स हो जाते हैं. 6 पॉइंट है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल 6 पॉइंट है. दे आर रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए लेजिस्लेशन का होना जरूरी है. दे आर नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स. 7 पॉइंट, ठीक है. तो ये कुछ हैं पॉइंट जिनको हमें याद रखना बहुत जरूरी है. थैंक यू.